Welcome back, student. This is our chapter number first, that is your chemical reactions and equations, right? In that one, that is a part number ninth from the class 10, that is your CBSE board, right? In that we will see 1.2.2 decomposition reaction, right? Then there are different types of decomposition reaction. In that we will see thermal decomposition reaction, decomposition of limestone we will see, and we will see whatever the previous year question, how they ask in the decomposition of limestone, as well as the activity 1.5 decomposition of a ferrous sulfate. So many questions they ask on this decomposition of ferrous sulfate on activity 1.5 and previous year questions on the basis of this above concept that we will see, right? First one is a 1.2.2, that is a decomposition reaction, right? Dear student, what is the definition of decomposition reaction here? The reaction in which single compounds breaks up into the two or more than two simpler substances. That is called as a decomposition reaction. Single substance breaks down into the two or more than two substances. That is called as a decomposition reaction. Now, how these decomposition reactions are carried out? With the help of the heat, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इज सप्लाइड टू द रिएक्टर. जो रिएक्टेंट है उसको या तो लाइट से रिएक्ट करो, इलेक्ट्रिसिटी रिएक्ट करो, या तो हीट से रिएक्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा. तो इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट कर सकते हैं, राइट. Decomposition reaction is also called as an your endothermic reaction. Why it is called as an endothermic reaction? Because during this reaction bond breaking is it takes place. जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है. अब और जब बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो रहा होता है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. And one of the most important characteristics of this decomposition reactions is end with the suffixes. Suffix म्हणजे समजा suffix म्हणजे काय, मिस्टर, ओके, अक्षय, अक्षय आणि काय आहे, मिस्टर अक्षय कुमार, राईट. कुमार आहे. आता कुमार म्हणजे काय, हे पाठीमागं आहे, राईट. तर त्याला आपण काय म्हणत असतो मित्रांनो, सफिक्स असं म्हणत असतो, राईट. वी कॅन कॉल टू सफिक्स, इसको हम सफिक्स बोलते हैं. So decomposition reaction end with the suffixes, that is your lysis. Lysis means breaking, right? For example, if you carried with electricity, electrolysis, right? If you carried with heat, pyrolysis. If you use with the help of the sunlight, then photolysis. So one of the most important characteristics of the decomposition reaction, it is the end with the lysis, suffix lysis, electrolysis, pyrolysis and photolysis, we can tell, right. Then there are three types of the decomposition reaction. First one is a thermal decomposition reaction. उसको हम pyrolysis भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे हीट यूज करते हैं, वो हम डिटेल आगे देखेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं, राइट. और फोटोलाइसिस, और दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम फोटोलाइसिस बोल सकते हैं. सो तीन प्रकार है डिकम्पोजिशन रिएक्शन: थर्मल, pyrolysis, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज हम उसको हम फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं, राइट. अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं. क्यों रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एकत्रित आते हैं और वन सिंगल सब्सटेंस बनता है. और यहाँ पे डिकम्पोजिशन में वन सब्सटेंस होता है, वन सब्सटेंस का कन्वर्जन दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस में होता है. इसीलिए decomposition reaction is a reverse of the combination reaction, राइट. अब मैक्सिमम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, उसमें हम हीट यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा. तो ये है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो शॉर्ट में मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का रिवाइज कर लेता हूँ. यहाँ पे क्या है, सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक होता है दो और दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं. डिकम्पोजिशन हम इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट के माध्यम से करते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है और हीट एब्सॉर्ब की जाती है. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एंड लाइसिस से होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस और फोटोलाइसिस से. तीन प्रकार के हैं, थर्मो, इलेक्ट्रो एंड फोटोलाइटिक. दैट इज पायरोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स है और हीट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है, राइट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. सभी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है. क्यों? क्यों रीजन? क्योंकि दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट करने के लिए रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी.
मतलब जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तब एनर्जी लगती है। क्यों लगती है कि और किस फॉर्म में लगती है? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में लगती है। बिकॉज फॉर द ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है एनर्जी से, इसीलिए एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है और दैट दे आर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी, दैट इज व्हाई ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। शॉर्टली आई विल डिवाइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। राइट, यहाँ पे हम देखेंगे पहला मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट बाय हीटिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होती है हीट देने से तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन मैंने लिया है। दोस्तों लाइमस्टोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, और मैंने बताया था ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला है। लाइमस्टोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है CaCO3। हीटिंग इट गिव्स अ क्विक लाइन एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमको मिलता है। कैसे मिलता है देखो, अब एक CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम लाइमस्टोन बोलेंगे। हीट करो, हीट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है CaCO3। दोस्तों यहाँ से अगर हीट करोगे तो CO2 बाहर निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब रह गया क्या? यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन रह गया, तो ये कैल्शियम और ये ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, आपको मिल गया CaO। राइट, और यहाँ पे क्या मिल गया आपका CO2, ये बाहर गैसियस स्टेट में चला गया। राइट, CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्या बोलेंगे? क्विक लाइम, और बाहर क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। सो डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके ऊपर हमको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पहले ही आया हुआ है। राइट, तो ये सब चीजें हैं। राइट, तो दूसरा, अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है आगे चल के। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट अंडरगोज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्टार्टिंग कलर ऑफ द फेरस सल्फेट इज ग्रीन। हीट करोगे कैसे आता है हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि इसका सेपरेट एक्टिविटी है। फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, डार्क ब्राउन टू रेड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस हमको बाहर जाएंगे। कैसे मिलेंगे हम आगे चल के देखेंगे। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट का, एंड फेरिक ऑक्साइड का जो कलर है डार्क ब्राउन टू रेडिश कलर में है। ऐसा है, ये मैकेनिज्म इसका हम आगे चल के देखेंगे। राइट, अब ये भी है आगे। लीड नाइट्रेट को हीट करो, if you are heating with the 2 molecule of a lead nitrate, you will get the lead oxide which is a yellow color, 4 molecule of a nitrogen dioxide which is an reddish brown color, right, reddish brown color हमको मिलेगा, और ऑक्सीजन गैस हमको मिलेगा। अब कैसे मिलता है, क्या होता है, हम आगे चल के देखेंगे इसको एक एक एक्टिविटी वाइज हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 32 से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन को। मतलब अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कैरिड आउट करते हो हीट से तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलोगे। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, उसको हीट करोगे तो क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, हीट करो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यहाँ पे फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है, हीट करोगे तो डार्क ब्राउन रेडिश कलर मिलेगा फेरिक ऑक्साइड का, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। लीड नाइट्रेट को हीट करोगे, लीड ऑक्साइड मिलेगा येलो कलर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा रेडिश कलर में, एंड ऑक्सीजन मिलेगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 32, स्टेट द केमिकल चेंज। अब इसका मैकेनिज्म जो है 4th नंबर और 5th नंबर का, वो हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि सेपरेट एक्टिविटी है उसके ऊपर। राइट, स्टेट द केमिकल चेंज that takes place when the limestone is heated in CBSE 2011 1 मार्क के लिए। मतलब लाइमस्टोन को हीट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये हमको जरा बताइए। यहाँ पे आपके सामने है, मैंने ऑलरेडी रिवाइज किया है, ये आप बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 33 है, what happens when zinc carbonate is heated in absence of air, gives the relevant equation। CBSE 2011 1 मार्क के लिए है, मतलब टर्म 1 के लिए, 2011 में 1 मार्क के लिए। अब जिंक कार्बोनेट को हीट करना है, ZnCO3,
ZnCO3 को हीट करो, CO2 बाहर निकलेगा, राइट, और आपका क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड, दैट्स ऑल। तो ये क्या है आपको 1 मार्क के लिए यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे नाम लिखो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स ऑल, यू विल गेट 1 मार्क, फिनिश। अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 देखेंगे। क्या है मेरी एक्टिविटी, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, बर्नर लेना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेना है, राइट। अब यहाँ पे मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ, राइट, हाँ, आई विल टेल यू द प्रोसीजर, वेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और टेस्ट ट्यूब में आप क्या करो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लो और उसको हीट करो। क्या आपको ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मिलेगा वो बताएं, दैट्स ऑल, दैट इज द प्रोसीजर इज ओवर, राइट। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, राइट। यहाँ पे एक लड़की का, ये देखिए, एक लड़की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। यहाँ पे क्या किया है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स मैंने इस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं और उसको आप हीट कर रहे हो। और जब हीट करते हो ना, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और यूर सेल्फ। मतलब जो भी आपका फ्रेंड है उसके मुंह पे या तो आपके मुंह पे या तो नाक के पास इसको मत रखिएगा। एंड वाफ्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स द नोज, मतलब एक गैस है ना, वहां से अपने नोज से साइड से चला जाएगा, राइट। सो दिस इज द वन। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मतलब आपको करना है, राइट, मतलब प्रोसीजर करनी है। अब क्या है दोस्तों, जो कलर है फेरस सल्फेट का वो ग्रीन कलर है, या FeSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट, ओके। अब ये पहले जैसे आप हीट करोगे ना, तो पहले व्हाइट कन्वर्ट होगा और व्हाइट कन्वर्ट होने के बाद रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होगा, जो आपका फेरिक ऑक्साइड है। अब ये चेंज इन कलर क्यों हो रहा है, ग्रीन से पर फर्स्ट व्हाइट हो रहा है, व्हाइट से फर्स्ट रेडिश ब्राउन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है, यहां से 7 वाटर मॉलिक्यूल वो लॉस हो रहे हैं और टेस्ट ट्यूब के माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब में जमा हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो स्मेलिंग ऑफ बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस बाहर चले जा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये केमिकल रिएक्शन है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, दिस इज द ग्रीन कलर व्हिच आई टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। और हीट करो, हीट करने के बाद 7 वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे और उसको हम वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। सो FeSO4 अनहाइड्रस कंडीशन में, अनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है वहां पे, 7 वाटर मॉलिक्यूल तो चले गए, और वो 7 वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे डिपॉजिट है, एट द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे डिपॉजिटेड है, ये इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, ऐसे लाखों मॉलिक्यूल है बट मैं 2 लेता हूँ। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट इज देयर, FeSO4 and FeSO4, and you have to heat because that is a white in color now. Okay, now ferrous sulfate is first green color to white and white to dark brown reddish, right. now यहाँ पे आपका कितना Fe 2 Fe है, Fe2 ऑक्सीजन कितने 8, उसमें से 3 ले लो, Fe2O3 स्टेबल कंपाउंड है, फेरिक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, उसका कलर डार्क ब्राउन टू रेड है। बचा क्या है आपका, 8 में से 8 ऑक्सीजन थे, उसमें से 3 गए, 5 ऑक्सीजन बच गए, 2 सल्फर है, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन हो गई मेरी, मतलब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करो, फेरस सल्फेट अनहाइड्रस मिलेगा। फेरस सल्फेट अनहाइड्रस के 2 मॉलिक्यूल ले लो, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, और डार्क ब्राउन टू रेडिश कलर हमको यहाँ पे मिलेगा। कंक्लूजन क्या है, जैसे ही आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हो, अंडरगोज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट अंडरगोज breaks down and forms the simpler substances of Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड कलर हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है मेरी एक्टिविटी। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस एक्टिविटी को थर्मल डिकम्पोजिशन फेरस सल्फेट का करना है। मतलब आपको क्या करना है, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल है, वो ग्रीन कलर हीट करोगे तो व्हाइट कन्वर्ट होगा, व्हाइट को हीट करोगे तो रेडिश ब्राउन में जाएगा, क्योंकि वो फेरिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कलर चेंज होगा, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और बर्निंग ऑफ स्मेल ऑफ सल्फर आ रहा है, क्योंकि SO2 SO3 बाहर आ रहा है। केमिकल रिएक्शन क्या है, FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था, वो ग्रीन कलर था, उसको हीट करो, फेरस सल्फेट अनहाइड्रस आ जाएगा, 7 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल फेरस सल्फेट के ले लो, हीट करो, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा, और ये कंक्लूजन आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है,
Write the balanced chemical equation FeSO4, Fe2O3, SO2 and SO3. CBSE बोर्ड टर्म 1 2011 1 मार्क के लिए। यहाँ पे बस यहाँ पे आपको 2 लिखना है। ऑलरेडी मैंने रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है, बाकी आप तो समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? When ferrous sulfate crystals are heated, मतलब हमने रिएक्शन देखी है, कलर रेसिड्यू आर फॉर्म्ड। अब कलर रेसिड्यू क्या हो रहा है? मतलब Fe2O3 यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब उसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन है, मतलब ब्राउन कलर है। That's all. So your answer is B. You will get 1 mark. Practical based question. Then see, little bit complicated question. Question number 36. During the experiment of heating of ferrous sulfate crystals, आप ferrous sulfate crystals आप heat करो। 4 students record their observation. First student, green color of the crystals changes brown black. Yes, correct है ये, right? Then brownish yellow gas is evolved. ऐसा कोई yellowish gas evolve नहीं होता है। Blue color of the crystals changes to green. नहीं, ये भी wrong है। और smelling of the sulfur. Yes, ये correct है। मतलब 1 और 4 correct है, तो यहाँ पे B option correct है। That's all. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग विद फेरस सल्फेट, 37 क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग विद फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वी गेट इरिटेटिंग चोकिंग स्मेल। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तड़ 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 ऐसा आवाज आ जाएगा वहां पे, राइट? सो इरिटेटिंग चोकिंग स्मेल यहाँ पे आपको आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 38 हो गया, 37 हो गया, 38। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? हाउ डू दिस कलर चेंज आफ्टर द हीटिंग? पहले क्या है? ग्रीन कलर था और ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 39, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में FeSO पर क्रिस्टल हीट करो। स्टेट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग। बिफोर हीटिंग क्या था? ग्रीन था। आफ्टर हीटिंग क्या है? ब्राउन ब्लैक है। 1 मार्क आपको मिल गया। नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द हीटिंग, SO2 एंड SO3। 1 मार्क आपको मिल गया। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। 1 मार्क आपको मिलेगा। दैट्स ऑल। सो ये 2012 में एक मार्क के लिए क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नो नीड टू एक्सप्लेन। व्हाई इज दिस रिएक्शन ऑलवेज एंडोथर्मिक? यस, टू break the reactant molecule we require energy in the form of light, heat and electricity. That is why it is endothermic. And write the chemical equation to represent the decomposition reaction. आप FeSO4 का लिखो, लीड नाइट्रेट का लिखो, या तो कोई भी लिखो। मतलब 1 मार्क के लिए, एंडोथर्मिक का 1 मार्क के लिए और रिएक्शन 1 मार्क के लिए यहाँ पे हमको ऐसे सॉल्व करना। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं और इस तरीके की शॉर्ट में आप इसको आंसर को लिख के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कुछ आप नोट्स वगैरह इसके चाहते हो तो व्हाट्सअप करो। यस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।